If the language is a barrier, you may watch the same video in English. Link is given in the description. हेलो स्टूडेंट्स, दीपक ट्यूशन सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चैप्टर के की कॉन्सेप्ट्स, स्टैंडर्ड सिंबल्स, बेसिक टर्मिनोलॉजीज और स्टैंडर्ड फॉर्मूले पे डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ कुछ रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। वीडियो का जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो डिस्कशन ऑफ क्रिटिकल एरियाज, जहां पे ज्यादातर स्टूडेंट्स मिस्टेक्स कमिट करते हैं। तो आप ध्यान रखें उन मिस्टेक्स का और ये भी ध्यान रखें कि वो मिस्टेक्स आपसे ना हो। बैंकिंग इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ आईसीएसई करिकुलम इन मैथ्स। Banking deals with recurring deposit account. In a recurring deposit account, what we do is we simply put a certain sum of money every month for a certain period of time in an account. So basically, if I deposit rupees 1000 per month for suppose 2 years, then the bank is going to pay me interest accordingly. And this chapter is all about calculation of interest. So basically, it gives us formulae for which we can calculate two things. One is interest, how much interest we will get for the certain period of time, and second is basically the maturity value. That is the amount that we will get after the final time has been complete. The total time for which the account was held is complete. So before going into this, let us see some standard symbols which we can use directly, for which we have to state nothing. So the standard symbols are P. P meaning monthly installment. In general, we consider P as principal. But here there is no principal, since principal is a fixed amount that you put at the starting of the time, and then when the time period is complete, you get a certain amount. Here you do not put a single amount, you put amount regularly. So when you deposit an amount regularly, you get monthly installment. So P is basically monthly installment. N is the number of months for which the deposit is held. So it is not the number of years, it is number of months. R is the rate of interest per annum that the bank offers you. I is the interest. It is calculated on a simple basis, not on compound basis, but it doesn't matter to us because we have certain fixed formulas. We'll just put the values in them and we'll calculate the interest. MV is the maturity value. Maturity value is the final amount that you get after the period of time has been complete, like after n number of months. There are only two formulas which are very easy. So you need to focus and do not make a mistake in writing or putting wrong values. So you need to be very careful in calculation, else everything is fine. First formula is for I, that is calculation of interest. So I is equals to P into N in brackets N plus 1 whole divided by 2 into 12 into R by 100. These symbols that we are using here are standard symbols. You can take them directly without even mentioning anything. But if you take any other symbol other than this, then you will have to specify what does that symbol mean. You cannot just assume that the teacher will get it. So if you are using A as a certain symbol, for example for amount, and not MV as maturity value, then you will have to state what is A. So you have to write amount bracket A, then you can write. Else you'll use, it's better if you use standard symbols. MV is equals to P into N in brackets plus I. The reason that I have put brackets in here, because some people mistakenly add this up. But you need to know that in BODMAS rule, we first multiply and then we add. So if you are not putting the brackets, you need to be careful. But the best practice is put the brackets and solve the sum easily. Rajiv has a 4-year recurring deposit account in Bank of Baroda and deposits rupees 800 per month. If he gets rupees 48200, that is 48,200 at the time of maturity, find part 1, the rate of simple interest, and part 2, the total interest earned by him. तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, डेटा कॉपी करेंगे क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे जिससे मेरे को पता चल जाए कि उसमें क्या क्या चीज इंफॉर्मेशन मेरे को ऑलरेडी गिवन है जैसे, और उसको अच्छे से लिख लेंगे। तो P इज इक्वल टू रुपीज 800, क्योंकि वो हर महीना 800 रुपया डिपॉजिट करता है, वो 4 साल के लिए ये काम करता है। तो N इक्वल्स टू 4 into 12, दैट इज 48 मंथ्स। ठीक है ना, N को डायरेक्टली 4 into 12 लिखना है, 4 years लिखने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड मैच्योरिटी वैल्यू जो उसको लास्ट में मिलता है, दैट इज इक्वल्स टू 48,000
200। तो सबसे पहले अपना डेटा कॉपी कर लो, उसके बाद सबसे पहले एमवी का फॉर्मूला लगाएंगे ताकि आई कैलकुलेट हो जाए। सो एमवी इक्वल्स टू पी इंटू एन प्लस आई। सो एमवी का वैल्यू 48,200 इक्वल्स टू पी का वैल्यू 800 इंटू 48 प्लस आई, और फिर 800 इंटू 48 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 38,400। तो इसको उधर भेज दिए और पूरा घुमा के लिख दिए। तो आई इज इक्वल्स टू 48,200 माइनस 38,400, जिसको कैलकुलेट करके आता है 9,800। सो ये हम लोगों का इंटरेस्ट हो गया कि उसने कितना इंटरेस्ट अर्न किया। हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा था कि उसने कितना इंटरेस्ट अर्न किया, तो वो यहां पे कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट चीज हम लोगों को कैलकुलेट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आई इज इक्वल्स टू पी इंटू एन, एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 मल्टीप्लाइड बाई आर बाई 100। हम लोग आई का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि दो ही तो फॉर्मूला है, दो में से एक तो लगाना ही पड़ेगा। सो आई का वैल्यू पता है 9,800 इज इक्वल्स टू 800 इंटू एन का वैल्यू 48। सो 48 इंटू 48 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100, क्योंकि आर हम लोग को मालूम नहीं है। सो बेसिकली यहां पे ये जो दो जीरोस है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर 12 4 जा होता है 48 और 2 से कटेगा 2 जा। सो 8 इंटू 2 48 प्लस 1 49 इंटू आर इज इक्वल्स टू 9,800। तो ये सबको अपने नीचे भेज देंगे, उधर मल्टीप्लाई में तो नीचे जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। सो 9,800 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 2 इंटू 49। काफी लोग प्रेफर करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर लो। आई एम लाइक क्यों मेहनत करे, फालतू का पहले मल्टीप्लाई करो फिर बड़े नंबर से डिवाइड करो, ये इजियर है ना। ये तो साफ साफ दिख रहा है 49 2 जा होता है 98, तो ये 200 हुआ, 2 से कटेगा ये 100 हुआ, ये 4 से कटेगा 4 2 जा और 4 से कटेगा 25। सो यू गेट 25/2 दैट इज 12.5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। और लास्ट में हम लोग एक स्टेटमेंट दे देंगे, देयरफॉर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12.5% एंड द टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड बाय हिम इज रुपीज 9,800, क्योंकि यही दो चीज मेरे से क्वेश्चन में पूछा गया था। कुछ इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल चीजें हैं जो तुमको ध्यान रखनी चाहिए जब तुम क्वेश्चन को सॉल्व करो, जैसे कि तुम कहां मिस्टेक कर सकते हो और जिससे तुम्हारे मार्क्स जा सकते हैं। सबसे पहला जगह है, अगर तुम फॉर्मूला को नहीं लिखो तो फॉर्मूला के लिखने पे मार्क्स होता है। सो अगर तुम फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो टीचर नंबर काट लेगा। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है फॉर्मूला का वैल्यूज पुट करना। जैसे कुछ जगह पे शॉर्टकट्स अप्लाई होता है, जैसे एमवी का वैल्यू 48 इंटू 200 पी इंटू एन, तो किसी ने क्या किया रफ में कैलकुलेट कर लिया पी इंटू एन क्या होता है और सीधा 38,400 लिख दिया। नॉट अ गुड आइडिया। तुम पहले वैल्यूज पुट करके दिखाओ एक एक चीज का, वो एकदम मैच होना चाहिए, और उसके बाद तुम डायरेक्ट कैलकुलेशन शॉर्टकट मार सकते हो, जैसे मैंने मारा। मैंने ओरली कैलकुलेट करके उसको ट्रांसपोज भी कर दिया और टोटल साइड स्विच भी कर दिया, वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन जब वैल्यूज पुट कर रहे हो तो वो डिस्प्ले होना चाहिए। सबसे ज्यादा पॉपुलर मिस्टेक होता है यहां पे। अगर यहां पे आप ये 48 प्लस 1 के जगह 49 लिखते हो तो टीचर्स का नजर पड़ के हो सकता है टीचर का नंबर काटने का हो जाए, क्योंकि यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1 है। सो बेस्ट प्रैक्टिस यही होता है कि तुम अपना कैलकुलेशंस दिखाओ, वैल्यू पुटिंग दिखाओ यहाँ पे कि तुम ये वैल्यूज इनको सब्सटीट्यूट कर रहे हो, इसके बाद शॉर्टकट मार लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब सपोज अगर ये ओरली इजीली कैलकुलेटेड होता, मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू लिख देता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोबडी केयर्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है कि तुमने वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हुए दिखाया है। नेक्स्ट जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इंप्लाइज। ये चीज का स्टेटमेंट कब कहां यूज करते हैं वो तुमको आना चाहिए। जब ऑलरेडी एक क्वेश्चन में इक्वल टू, एक लाइन में इक्वल टू प्रेजेंट होता है, तब हम लोग यहां पे ये एरो विच इंप्लाइज या फिर और का सिंबल लिखते हैं, ओ आर कॉमा। दो में से एक चीज तो होना ही चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो टीचर पक्का मार्क्स काट लेगा और यहां तो डेफिनेटली कटेगा नंबर। एंड लास्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कोई भी प्रॉब्लम सम, इनफैक्ट कोई भी सम के लास्ट में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट होना चाहिए, कुछ भी छोटा सा हो बड़ा सा हो व्हाटएवर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके हिसाब से कंक्लूडिंग स्टेटमेंट बनाना चाहिए। अगर वो नहीं बनाओगे तो वहां पे टीचर तुम्हारा नंबर काट लेगा। Aisha has a recurring deposit account in SBI for 3 years at 8% per annum simple interest. If she gets rupees
8,088 at the time of maturity. Find the monthly installment. फिर से रूल वही है, सबसे पहले डेटा लिखेंगे. So n is equals to 3 into 12, that is 36 months. R is equals to 8% per annum, और maturity value MV is equals to rupees 8088. और मिसिंग क्या है हम लोग का, वो है मंथली इंस्टॉलमेंट. तो लेट द मंथली इंस्टॉलमेंट बी रुपीज एक्स. सो देयरफॉर P equals to rupees x. अब इस स्टेटमेंट को तुम चाहो तो नीचे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर तुमने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा और समझ लिया है तो तुम अरेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा. अभी यहाँ पे इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे. I is equals to P into n plus 1 by 2 into 12 into R by 100. इससे इंटरेस्ट का एक सर्टेन वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ x. सब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे. P का वैल्यू x, n का वैल्यू 36, R का वैल्यू 8. सो यहाँ पे 12 कटेगा, 3 जा 36, और यहां पे 2 से कटेगा 4 जा, और 4 से कटेगा 25 टाइम्स. सो 3 into 37 डिवाइडेड बाई 25. 3 into 37 होता है 111. सो ये हो गया 111x by 25. ये हो गया इंटरेस्ट का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x. अभी आगे दूसरा फॉर्मूला है, वो है मैच्योरिटी वैल्यू. इसका फॉर्मूला है P into n plus I. सो मैच्योरिटी वैल्यू का वैल्यू है 8088 इज इक्वल्स टू P का x, n का 36 प्लस इंटरेस्ट का 111x by 25. यहां पे एलसीएम ले लेंगे. सो 36x into 25 is 900. 900x plus 111x gives us 1011x, और ये 25 को उस तरफ भेज देंगे. सो यहां पे मल्टीप्लाई करने का मेहनत फिर से मत करना, इस 1011 को नीचे ले आएंगे. सो 8088 into 25 by 1011. यहां पे 1011 8 टाइम्स कटेगा. सो 8 into 25 that is 200. सो कैलकुलेशन कोई बहुत बड़ा डील नहीं है, मोस्ट ऑफ यू कैन डू इट इजीली. सो वो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बस मैं बता रहा हूं. बाकी यू नीड टू नो कि प्रोसेस क्या है. सो उससे हम लोग लास्ट स्टेटमेंट लिख देंगे, द मंथली इंस्टॉलमेंट इज रुपीज 200. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए. अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज इस आइकॉन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर अपडेट मिलती रहे.